Okay. So last class we had discussed कि what is my power in my single phase AC circuit. ठीक है. We had taken a simple sinusoidal source supplying a load. हमने उसका instantaneous value निकाला. So instantaneous voltage value कुछ लिया, instantaneous current value कुछ लिया, and then we found out what is my instantaneous power delivered to the load. ठीक है. So what it came out to be, instantaneous power is what the product of the your instantaneous voltage and instantaneous current. ओके ये हो गया. इसको हमने थोड़ा इवैल्यूएट करा. इवैल्यूएट करने के बाद वी केम अप विथ अ पॉइंट, एक इक्वेशन आया हमारे पास. तो वो इक्वेशन क्या था, उसको हमने जब रिड्यूस किया तो एक इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव पावर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पावर. ठीक है. सो व्हाट विल बी माय दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है पी आर टी, दैट इज व्हाट वी आई cos omega t plus vi cos omega t cos theta into cos 2 omega t plus theta v. Okay, this is my simple. Which power is this? Can anyone tell me? Last time का मैं बस revision ही देख रही हूँ. So this is nothing but अगर मैं उसको थोड़ा देखूँ तो this is my real power or my active power. ठीक है. So this is my power which is going to flow in your circuit. What is my pxt? The second term जो मेरा ये instantaneous power के term में निकल रहा है, जो मेरा second term आ रहा है, that term is what this term is known as my reactive power. Okay. Now one thing you have to make clear कि हमने यहाँ पे real power, active power ये जो है, तो ये particular term में से where is my this term gone? तो जब हम इसका एवरेज वैल्यू लेंगे, दिस एवरेज वैल्यू कुछ भी एक साइनसॉइडल फंक्शन में कुछ किसी का भी एक एवरेज वैल्यू लेने वाला है, तो पावर डिलीवर्ड जो होने वाला है, तो ये इसका टर्म होगा, दैट विल बी 0. एंड जो एवरेज वैल्यू मेरा आएगा पावर का, दैट कम्स आउट टू बी वी आई कॉस थीटा. सो दिस इज द पावर ऑब्जर्व्ड बाय माय रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड एंड इट इज आल्सो रिफर्ड टू माय एक्टिव और माय रिएक्टिव पावर. नाउ द प्रोडक्ट of RMS value of voltage and current is known as my apparent power and is measured in volt ampere. This is simple, जो हमने already किया हुआ है. Now the product of this apparent power and my cosine of angle between voltage and current, this gives me my real power, this particular part. Okay. Now this cos theta, when you're going to represent my real power, this cos theta is going to play an important role. So this cos theta is actually known as your power factor. Now एक चीज हमने देखी कि when your current lags your voltage, तो power factor क्या होने वाला है, this is going to be lagging. When your current leads your voltage, your power factor is going to be leading. ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, तो we are having the complex, एक complex power flow हम अगर देखने वाले तो वहां से हमें वो मिल जाएगा. And this thing you people have already studied जब हमने first class में single phase AC circuit through various elements हमने पढ़ा था, तो you already have completed it. Okay. Now coming to my next part, reactive part. The reactive part is what? Reactive power is having frequency twice the frequency of my supply. तो इसका average value क्या आने वाला है? This average value is going to come out to be 0. Now this component accounts for power oscillating into and out the load because its reactive element is either a capacitive part or either a reactive part. तो अगर हमें amplitude चाहिए होगा, तो amplitude of this pulsating power is called as reactive power. तो और हम इसे represent कैसे करेंगे? In terms of Q, which is equals to Vi sin theta. Okay, ये यहाँ तक हमारा P and Q तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास के लिए. Okay, I had asked you to write a simple program. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बोला था एक सिंपल प्रोग्राम लिखना था to find out my instantaneous power, to find out my current, to find out voltage, reactive power and real power and reactive power. I guess आप लोगों ने वो किया होगा, बट किसी ने मुझे वापस मैसेज नहीं किया कि और सबमिट भी नहीं किया कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है. ओके. नाउ वन थिंग, अभी हमें आगे जो भी डील करना है, that we are going to deal with this P and Q only. Next topic which we are going to cover today is my complex power. Okay, so what is my complex power? अगर मुझे complex power को define करना है, तो what is my complex power?
So basically when you talk about complex power का definition ये आता है कि complex sum of active and your reactive power is known as my complex power. ठीक है, this is your today's point to be discussed over here. कि अगर मुझे एक्टिव और एक मेरा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दिया गया है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट माय कॉम्प्लेक्स पावर, so this is my complex power. ये है मेरा complex power. The complex sum of this sum is known as my complex sum of active and reactive power. ठीक है, this is my complex power S. ठीक है, this is my active power P and this is my reactive power P. Okay. Now if you need to find, अगर इसी टर्म को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डाल दे, ओके, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर डाल रहे हैं तो mod of s is equals to under root t square plus q square. This mod of s is known as your apparent power. Okay, and this is your under root of t square plus q square. This is known as your apparent power. इसका यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर. अगर कोई लार्जर यूनिट चाहिए तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, किलो VA एंड MVA. ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो कैसे होगे कि हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू V एंड I. ये एक पार्ट है, हम यहाँ से शुरू करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स पावर में इन्होंने क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स पावर के डेफिनेशन में एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है और रेफरेंस के साथ दे हैड उन्होंने प्लॉट किया V को, RMS वैल्यू, RMS वोल्टेज फेजर ड्रॉ किया एंड RMS करंट फेजर ड्रॉ किया. तो V इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा V. ये है मेरा कुछ डेल्टा V. डेल्टा V हमने लास्ट क्लास डिफाइन किया था. इफ यू नो, आई विल गो थ्रू दैट. आ गया, हमने यहाँ पे कुछ फेजर डिफाइन किया था, थीटा V. ओके, सॉरी. तो थीटा V को हमने रिप्रेजेंट किया था, तो हमने एक फेजर ड्रॉ किया है to in order to determine my complex power. So with respect to my reference axis, this voltage phasor is making an angle theta V. Okay, and your current phasor is making an angle theta I. Okay, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि my current is lagging the voltage. Okay, और ये जो मेरा वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी मेरा एंगल आ रहा है, that is my theta. So this particular phasor diagram and power triangle is for what? This phasor diagram is and power triangle is for an inductive load which is equals to lagging, which is known as your lagging power factor. Now when you want to define your complex power in terms of V and I, तो हम उसे कैसे define करते हैं? तो ये है मेरा V and I, the term V and P into I conjugate. ये है मेरा वोल्टेज का वैल्यू, फेजर वैल्यू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉड ऑफ थीटा एंगल ऑफ थीटा V, एंड अगर I का फेजर फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इनटू थीटा I. ओके, अभी अगर मुझे कॉम्प्लेक्स पावर को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे V और I के टर्म्स में, V इनटू I कॉन्जुगेट. ठीक है, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू राइट I कॉन्जुगेट? तो I कॉन्जुगेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी कॉन्जुगेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसका जो थीटा का वैल्यू होगा, एंगल का वैल्यू होगा, इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड विद एन ऑपोजिट साइन. So suppose I'm having an angle of positive theta I, so when I'll represent its conjugate value, so it will come out to be V into conjugate I. तो mod of V into mod of I, angle क्या हो जाएगा मेरा, theta V minus theta I. I hope this part is clear. Theta V minus theta I. Hello, please anyone respond? Is this clear? तो ये मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, ये फेजर डायग्राम से आपको इतना पता चल रहा है कि ये क्या होगा, थीटा V, और मुझे क्या थीटा को रिप्रेजेंट करना है, तो थीटा क्या होगा, थीटा V माइनस थीटा I. सो ये है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, नाउ इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन थीटा, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट VI cos theta plus J VI sin theta. So this is my complex power in terms of my V and I. Okay, so the above equation defines the complex quantity where its real part is the average power and its imaginary part is my reactive power. Okay, तो ये हमने ऑलरेडी दे लिया.
Thus the complex power designated is S conjugate I, तो उसको हम represent कर रहे हैं P plus J into Q. So what is my P over here? P is this part. With real part is my average power P and my imaginary part, ये जो मेरा imaginary part है, this is my reactive power Q. Okay. इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, एस का मैग्नीट्यूड जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एपरेंट पावर. ओके, इसका यूनिट होने वाला है वोल्ट एम्पियर. नाउ दिस एपरेंट पावर गिव्स अ direct indication of heating and is used as a rating unit for power equipment. किसी भी इक्विपमेंट में आपने देखा होगा कि हाँ, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर ले तो ट्रांसफॉर्मर हमें किस यूनिट किस रेटिंग में लिया गया है, कौन सा रेटिंग होता है ट्रांसफॉर्मर को. अगर ट्रांसफॉर्मर का नेम प्लेट आपको बोला जाए कि हाँ भाई देखो, तो वो कौन से टर्म्स में लिखा हुआ रहता है, इट इज इन टर्म केवीए. ओके. नाउ apparent power अगर हम बात करें as a practical significance for an electric utility company, since utility company must supply both your average and your reactive power. ओके, ये हम चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू वापस लेंगे. कमिंग बैक, तो रिएक्टिव पावर Q इज पॉजिटिव व्हेन द फेज एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड योर करंट इज पॉजिटिव. तो फेज एंगल को हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज माई इम्पिडेंस एंगल. ठीक है, तो ये Q कब पॉजिटिव होने वाला है, when this particular angle is going to be positive. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, थीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट, माय Q इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. आप पहले से ही लाइक यू कैन से कि हाँ, थीटा का वैल्यू मेरा थीटा v माइनस थीटा I आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट, माय एंगल इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो एक चीज हम डाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव कब होगा, जब आपका एंगल जो होगा दैट इज पॉजिटिव. और इन अदर वर्ड्स, जब आपका लोड जो भी हम ले रहे हैं इज इंडक्टिव इन नेचर. तो लोड इंडक्टिव इन नेचर होगा, तो नेक्स्ट पार्ट ये हरा होगा कि मेरा करंट जो भी होगा दैट इज लैगिंग माय वोल्टेज बाय एन एंगल, बाय सम एंगल. ठीक है, तब जाके ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है मेरा ये क्लैरिफाई होता है कि भाई ये इम्पिडेंस एंगल भी कब पॉजिटिव होने वाला है, ये रिएक्टिव पावर भी कब पॉजिटिव होने वाला है, when my load impedance is going to be inductive in nature. Now can anyone tell me कि मेरा ये जो Q का वैल्यू है नेगेटिव कब आएगा, when can be this angle this power reactive power भी नेगेटिव. तो मेरा रिएक्टिव पावर नेगेटिव कब होगा, जब ये मेरा थीटा का वैल्यू जो है, इम्पिडेंस एंगल जो भी होगा दैट इज नेगेटिव. वो नेगेटिव कब हो रहा है, व्हेन माय लोड इम्पिडेंस इज कैपेसिटिव एंड मेरा करंट जो भी होगा दैट इज लीडिंग माय वोल्टेज. सो हियर कम्स एन एग्जांपल ऑफ माय कैपेसिटिव लोड. इज दिस क्लियर? जब हम पावर ट्रायंगल, हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं V and I के टर्म में, एंड देन व्हेन यू आर ड्राइंग योर पावर ट्रायंगल फॉर एन इंडक्टिव लोड, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि हाँ, मेरा थीटा पॉजिटिव है. आई कैन अज्यूम दैट यहाँ पे इट इज एन इंडक्टिव लोड बिकॉज माय करंट इज लैगिंग द वोल्टेज. नाउ ये फेजर एंगल से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि माय करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ थीटा. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, my final angle is going to come out to be negative. Okay, and my Q is going to be negative. ये इसका exactly opposite हो जाएगा. When you talk about your which part, when you talk about your capacitive load, can anyone tell me कि what about your resistive load? अगर मेरा load resistive in nature है तो what will be the angle? Fan. हाँ, सो आपका जो भी बिकॉज यू नो कि दोनों इन फेज चलते रहते हैं. फॉर योर रेजिस्टिव लोड बोथ द पार्ट्स आर लाइक वोट योर करंट एंड योर वोल्टेज आर इन फेज इन नेचर. तो आपका एंगल जो भी होगा दैट विल बी जीरो. ओके, ओके, इज दिस क्लियर? हेलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट. इस चीज का पूरा एक पीपीटी बना के मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी ताकि यू पीपल कैन हैव डायरेक्ट इजियर एक्सप्लेनेशन. ओके, ना अगर मुझे लोड इम्पिडेंस दिया गया है,
तो अगर लोड इम्पिडेंस हम कैसे लोड इम्पिडेंस है तो अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा V इज इक्वल्स टू Z इंटू आई। तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर में विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Z आई का सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वो क्या निकल के आता है R इंटू आई स्क्वायर प्लस J इंटू एक्स इंटू आई स्क्वायर मॉड ऑफ आई स्क्वायर। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स पावर एंड इम्पिडेंस हैव द सेम एंगल. Because the power triangle and the impedance triangles are similar, the impedance angles sometimes is known as your power angle. Okay. Now, next, substituting the